Grantha Tattva Sutra is going on, and in chapter number 2, we see that Acharya Shri Uma Swamiji Maharaj are saying regarding the Jiva, different things regarding Jiva they are discussing, and in which, first of all, they see the unique thoughts that are in Jiva only. So, these thoughts they had seen, and thereafter they after telling the symptoms of jiva and the types of that symptom, thereafter yesterday Acharya was telling regarding the types of jivas. We see that there are two types of jivas, that is sansarino muktascha, that means the persons who are worldly and the person who have got the salvation. Thereafter, in the further type, Acharya told regarding the persons who are worldly, they are of two types, that is samanaska manaska. Yesterday we discussed regarding the types of the persons who are remaining in this world, who are here in the world, that are of two types, that is samanaska manaska, means the persons who have got the mind, and the second one is the persons who have not got the mind. So there are two types of persons that are called samanask and amanask. The other names are Sani and Asani. So we had discussed in detail regarding the Sani and Asani yesterday, that there are two types of persons. All the persons having the senses from 1 to 4, that means having the 1 sense, 2 sense, 3 sense and 4 sense, they all are amanaska, means ascending without mind. But the persons having the all the five senses, there are five senses, and the persons who have got the all the five senses, they are of two types. One are having the mind and one are not having the mind. So up to the four sense persons, they all are without mind, that are amanask, that is ascending. But the persons having the all the five senses, they are of two types. One are having mind and one are having not mind. One are having mind and one are those who are not having the mind. All the human beings, all the human beings that are minded persons, all the human beings are minded person. Thereafter we see the cow, the dog, a lot of animals, they are all having the mind person. So they all are called Sani or Samanask. Today Acharya is saying regarding the different types of the persons, worldly persons, and in which Acharya is telling again worldly persons are of two types, and in this Acharya is telling the types of those persons in Sutra number 12. बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की एक यूनिक ग्रंथ, एक अद्वितीय रचना, जिसमें आचार्य श्री ने प्रत्येक सूत्र में रहस्यों को उद्घाटित किया है। और ऐसे रहस्यों का आचार्य श्री उद्घाटन करते हुए दूसरे अध्याय में जीव के विषय में वर्णन कर रहे हैं। और जीव के विषय में वर्णन करके आचार्य श्री ने क्या किया, विभिन्न भावों का वर्णन किया। विभिन्न भावों का वर्णन करने के बाद आचार्य श्री ने जीव के लक्षण के विषय में बताया, जीव के भेदों के विषय में चर्चा की। और जीव के भेदों में आचार्य श्री ने बताया कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक संसारी और एक मुक्त जीव। तो जो मुक्त जीव हैं वो तो सिद्धालय में विराजमान हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, लेकिन जो संसारी जीव हैं वो उनके विषय में आचार्य बता रहे हैं कि कल हमने देखा था कि वे दो प्रकार के हैं। किस प्रकार से, मन की अपेक्षा जीव दो प्रकार के हैं, एक समनस्क हैं और एक अमनस्क हैं। तो जितने भी संसारी जीव हैं उनमें से जो मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब कैसे हैं, समनस्क, मन सहित हैं। और मन सहित कौन से जीव होते हैं, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, जिनमें शिक्षा, उपदेश आदि को ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाते हैं, समनस्क। और जिसमें ये क्षमताएं नहीं होती, जो शिक्षा, उपदेश आदि को ग्रहण नहीं कर सकता, वो क्या कहलाते हैं, अमनस्क। तो एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक सभी क्या हैं,
अमनस्क हैं उनमें शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। लेकिन पंचेंद्रिय जीव में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, समनस्क भी और अमनस्क भी। तो इस विषय में कल आचार्य जी ने पूरी चर्चा कर ली थी। आज आचार्य श्री दूसरा एक टाइप बता रहे हैं, दूसरा एक प्रकार बता रहे हैं कि संसारी जीवों के अन्य प्रकार से भी भेद किए जा सकते हैं। तो वे भेद कौन कौन से हैं आचार्य श्री सूत्र नंबर 12 के हिसाब में इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। तो सभी लोग एक साथ बोलेंगे, संसारिणः त्रस्थावरः, संसारिणः त्रस्थावरः। तो यहां पर आचार्य जी ने कहा कि संसारी जीवों के दूसरे भी भेद हैं। वो क्या हैं? संसारी और त्रस, यानी त्रस और स्थावर। तो संसारी जीव जो हैं अन्य प्रकार से भी विभाजित किए जा सकते हैं। एक वो जो कि त्रस हैं और एक स्थावर। अब त्रस से क्या तात्पर्य है और स्थावर से क्या तात्पर्य है, इसके विषय में भी आगे आचार्य जी का वर्णन जो है अगले सूत्रों में कर रहे हैं कि त्रस कौन है और स्थावर कौन है। मोटे तौर पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब हम इंद्रियों के विषय में देखते हैं तो जिसके अंदर एक इंद्री है, एक इंद्री मात्र पाई जाती है, वो क्या है? स्थावर है। और जिसमें 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सभी पाए जाते हैं, मन पाया जाता है, वे सभी क्या हैं? त्रस हैं। तो एक इंद्री को छोड़कर सभी क्या हैं? त्रस हैं। और मात्र एक इंद्री वाले कौन हैं? वो स्थावर हैं। तो जितने भी अपन देखते हैं, चाहे चींटी है, केंचुआ है, केंचुआ कितने इंद्री है? 2 इंद्री, और चींटी 3 इंद्री, मक्खी मच्छर आदि 4 इंद्री, और इसके बाद फिर मनुष्य, गाय, कुत्ता, बैल, ये सब क्या है? 5 इंद्री। तो ये सब क्या है? ये सभी त्रस हैं, ये सभी त्रस की कोटि में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक से अधिक इंद्री पाई जाती है। और जो मात्र एक इंद्री, कौन सी? स्पर्शन इंद्री को धारण करते हैं, एकमात्र स्पर्शन इंद्री जिनकी पाई जाती है, वो क्या है? स्थावर हैं। तो स्थावर में हमारे जो जिनमें एकमात्र स्पर्शन इंद्री ही पाई जा रही है, वो क्या है? स्थावर हैं। तो उसी स्थावर के विषय में आचार्य जी बता रहे हैं कि ये स्थावर जीव आगे कितने प्रकार के हैं, वो आचार्य जी सूत्र नंबर 13 में बतला रहे हैं। तो उसको भी हम आगे देख रहे हैं। सूत्र नंबर 13 में आचार्य जी ने स्थावर जीवों के भेद बताए। तो स्थावर जीवों के भेदों में आचार्य जी ने कहा, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्य स्थावरः, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरः। तो जो स्थावर जीव हैं, स्थावर यानी कि एक इंद्रिय जीव, वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अप यानी जल, अप यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु और वनस्पति। तो सीधा अर्थ हो गया, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 क्या हैं? स्थावर जीव हैं। और जिनकी क्या होती है? एकमात्र स्पर्शन इंद्री ही होती है। जब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, स्थावर जीव की क्या परिभाषा है, तो स्थावर नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीव की अवस्था विशेष को क्या कहते हैं? स्थावर कहते हैं। सबसे आसान तरीका याद करने का, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। ये सभी नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 93 प्रकृतियां हैं। तो उसमें स्थावर नाम की जो प्रकृति है, तो स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है, पर्याय जो होती है, उसे स्थावर कहते हैं। तो इसमें बताया कि ये स्थावर जीव होते हैं। पृथ्वी का एक, पृथ्वी ही जिनका शरीर है, वो क्या है? पृथ्वी का एक है। अपन सोचते हैं कि पृथ्वी तो क्या है? ये तो अजीव है, पत्थर है ये तो। लेकिन पृथ्वी में भी जीव पाया जाता है। कैसे पता लगे अपन को पृथ्वी में जीव पाया जा रहा है? पृथ्वी में जीव पाया जा रहा है, ये कैसे पता लगे? पत्थर बढ़ता है। आपने देखा कभी पत्थर को बढ़ते हुए? एक चट्टान होती है, वो जब तक उसका खदान से लिंक रहता है, और खाली पत्थर ही नहीं, सोना, चांदी, ये सब क्या है? लोहा, ये सब क्या है? पृथ्वी का एक जीव है। जितनी भी धातुएं हैं, ये सब पृथ्वी का एक हैं। लेकिन अंतर इतना है कि जब तक ये खदान से इनका संबंध बना होता है, तब तक इसमें जीव रहता है, और खदान से अलग कर देने पे
अजीव हो जाते हैं, इनका जीव जो है वो निकल जाता है। जैसे अपन देखें कि जो धातुएं हैं जब तक खदान में रहती हैं बढ़ती रहती हैं बढ़ती रहती हैं, और खदान से निकाल लें तो फिर उनका बढ़ना बंद हो जाता है। पत्थर, चट्टान की चट्टान यदि हो तो वो बढ़ती है। चट्टान जो है, गोलू भैया, अपना राजू भैया, देखा आपने चट्टान को बढ़ते हुए? चट्टान जो है वो बढ़ती है। आपके यहाँ पर एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है आपके यहाँ पे पास में? बानपुर। वहां पे कौन से भगवान है? शांतिनाथ भगवान। और आज शांतिनाथ भगवान के तीन तीन कल्याणक हैं। आज शांतिनाथ भगवान के क्या है? तीन तीन कल्याणक। कौन कौन सा? गर्भ नहीं, जन्म, तप और मोक्ष। यानी आज के दिन शांतिनाथ भगवान ने जन्म लिया था। चतुर्दशी, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन शांतिनाथ भगवान का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और उसी दिन उन्होंने क्या किया था? तपस्या को अंगीकार किया था, दीक्षा को धारण किया था। दीक्षा कहो अथवा तप कहो, तप कल्याणक भी कहते हैं आप उसको, दीक्षा कल्याणक भी, दोनों ही नाम रहते हैं। चाहे दीक्षा कल्याणक कहो और चाहे तप कल्याणक कहो। आप देखते हैं ना कि दीक्षा ही अपने आप में तप है। इसलिए कोई भी साधु ये मत सोचो कि ये तपस्वी नहीं है, ये तो उपवास आदि तो ज्यादा करते नहीं है, ये तो प्रतिदिन आहार के लिए उठते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा कोई चलते भी नहीं है, एक ही स्थान पे रहते हैं। अरे जितने भी साधु हैं वो सभी तपस्वी हैं। क्यों? क्योंकि दीक्षा धारण करना अपने आप में एक तप है। इसीलिए तो अपन तप कल्याणक भी कहते हैं और उसको दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं। जितने भी महाराज हैं चाहे कैसे भी हों, आहार कितनी बार करते हैं? एक ही बार करते हैं ना, तो ये तपस्या हुई कि नहीं हुई? विहार कैसे करते हैं? पैदल विहार करते हैं, तो ये तपस्या है कि नहीं? 4 महीने में अधिक से अधिक क्या करते हैं? केशलोच करते हैं। बूढ़े भी होंगे पुराने कैसे भी होंगे, 4 महीने में एक बार केशलोच करते हैं। व्रत नियम संयम का पालन करते हैं। कुछ उपवास अनिवार्य रहते हैं, उस दिन अनिवार्य उपवास करते हैं। केशलोच के दिन नियम से उपवास करते हैं। जिस दिन आपके चातुर्मास की स्थापना होती है उस दिन उपवास धारण करते हैं। चातुर्मास का निष्ठापन होता है, नियम से उस दिन उपवास करते हैं। और भी जो उनके आवश्यक हैं उनमें प्रायश्चित आदि के उपवास आदि करते हैं। तो इतनी तपस्या तो हर कोई करते ही करते हैं। तो इसलिए प्रत्येक साधु क्या है? तपस्वी है। अपन लोग जब चौका लगाते हैं तो अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कि अमुक महाराज आ जाएं तो अच्छी बात है। अरे जो आ जाएं, जो आ जाएं, आप तो अपनी भावना बना के रखो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साधु तपस्वी है। बस ये अंतर हो सकता है कि किसी की क्षमता ज्यादा है, किसी की क्षमता कम है। तो जिसकी क्षमता ज्यादा है वो उपवास आदि कर लेता है, और जिसमें क्षमता कम है वो उपवास आदि कम करता है। जिसकी ज्यादा चलने की क्षमता है वो विहार ज्यादा करता है, और जिसकी कम चलने की क्षमता है वो विहार कम करता है। लेकिन तपस्या सभी करते हैं। इसलिए कभी भी साधु को आहार देने में परीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बूढ़े हैं, जवान हैं, अमुक संघ के हैं, अमुक संघ के हैं, आचार्य विराग सागर जी के संघ के हैं, विद्या सागर जी के संघ के हैं, कुंद कुंद सागर जी के संघ के, किस संघ के हैं? ज्यादा उपवास करने वाले हैं, कम उपवास करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, प्रवचन करने वाले हैं, बिना प्रवचन करने वाले हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, कुछ नहीं देखना चाहिए। कोई परीक्षा नहीं करनी चाहिए। आप क्या देखो? पिछी और कमंडल, एकमात्र पीछे और कमंडल देखना चाहिए। क्यों? और तो क्या, कुछ लोग ये भी देखते हैं कि ये तो अपने 28 मूल गुणों का पालन ही नहीं कर रहे। ऐसा भी कि ये तो साधु ही नहीं है। पहली बात तो प्रत्येक साधु की भावना रहती है 28 के 28 मूल गुणों का पालन करने की। और दूसरी बात यह है कि अगर 28 मूल गुणों का पालन नहीं भी हो पा रहा तो भी इसका अर्थ ये नहीं कि वो साधु नहीं है। क्यों? आप तत्वार सूत्र में एक सूत्र पढ़ते हैं, साधु कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से बालचंद जी? पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा।
तो ये सभी क्या है? निर्ग्रंथ हैं, ये सभी क्या है? साधु हैं। पुलाक कौन होते हैं? जिनके मूल गुणों में दोष लगता है, वो कौन है? पुलाक हैं। उनको किस में लिया? साधु में लिया कि नहीं लिया? साधु में गिना ना उनको। किसने लिया? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। इतने महान आचार्य, उनको भी साधु के अंदर गिन रहे हैं, साधु से बाहर नहीं गिन रहे। और कौन से साधु? भावलिंगी साधुओं के वो हैं ये, द्रव्यलिंगी की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ भावलिंगी की बात कर रहे हैं। तो वो भी भावलिंगी साधु हैं। क्यों? परिस्थिति हो सकती है, क्षमता हो सकती है कि वो सामायिक नहीं कर पाए। बैठे तो थे सामायिक के लिए, लेकिन झोंका आ गया, चल के आए थे, विहार करके आए थे, और उसके बाद आते ही अपना सामायिक में संलग्न होने झोंका आ गया। अब परिस्थिति वशात है। दोष तो लगा मूल गुण में, लेकिन भावना नहीं थी। भावना तो यही थी कि हम निर्दोष सामायिक करें। हो सकता है किसी के लिए स्तोत्र पाठ जो है याद नहीं थे और पुस्तक भी नहीं मिल पाई। अब वो स्तोत्र नाम का उनका कृतिक्रम था, वो नहीं हो पाया। क्या करें? अब वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, याद था नहीं, उन्हें सुनाने वाला भी कोई नहीं मिला और पुस्तक भी नहीं मिल पाई, अथवा पढ़े लिखे ही नहीं थे और उस मौके पे कोई सुनाने वाला नहीं मिला। पढ़ने वाले थे लेकिन लाइट नहीं थी, वहां पे अंधेरा था, रात्रि का समय था। तो मूल गुणों में दोष लग सकता है, लेकिन भावना से दोष नहीं लगाया उन्होंने। भावना वही थी कि हमारे मूल गुणों का निर्दोष पालन। तो भी में क्या है? पुलाक हैं। और आप कहें कि इन्होंने तो प्रतिक्रमण ही नहीं किया। अरे प्रतिक्रमण उन्होंने भावपूर्वक तो कर लिया। याद नहीं था, कोई बात नहीं, पुस्तक नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, अंधेरा था, नहीं पढ़ पाए, सुनाने वाला नहीं मिल पाया, भावपूर्वक तो उन्होंने अपने दोषों का प्रतिक्रमण कर लिया, आलोचना कर ली उन्होंने भावपूर्वक। बस द्रव्य रूप से जो प्रतिक्रमण पढ़ना था वो किस दिन नहीं पढ़ पाए। तो इसलिए वो भी क्या है? साधु हैं, पुलाक और वकुश, जिनका मूल गुणों में दोष तो नहीं लगता, लेकिन उत्तर गुणों में दोष लग जाता है। तो वे सभी साधु की कोटि में आते हैं। इसलिए कभी भी साधु के लिए ये परीक्षा नहीं करनी चाहिए अपन को, ये कैसे हैं, क्योंकि सभी क्या हैं? तपस्वी हैं। आचार्य श्री कुंद देव रयन सार की गाथा नंबर 15 में क्या कह रहे हैं? दानम भोजन मित्तम दिन्नति धन्नो हवेदी सायारो पत्ता पत विशेषम सदसने किम वियारेन। पंडित जी क्या बात कही उन्होंने? दानम, दान यानी आहार दान, आहार दान की बात कर रहे हैं। भोजन मित्तम, आहार में क्या देते हैं आप? भोजन ही तो दे रहे हैं, सोना चांदी तो नहीं दे रहे, कोई जवाहरात तो नहीं दे रहे, हीरे मोती तो नहीं दे रहे, कोई अपनी प्रॉपर्टी तो उनको उनके नाम ट्रांसफर तो नहीं कर रहे। क्या दे रहे हैं? साधु को आप लोग आहार देते हो तो क्या देते हो? उसमें भोजन ही तो दे रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, कोई करोड़ों की संपत्ति तो नहीं दे रहे उनको, भोजन ही तो दे रहे हैं। भोजन मित्तम, एक मात्रा भोजन ही तो दे रहे हैं। दृढ़, इतना मात्र देने से धन्नो हवेदी सायारो। क्या कहा? कि श्रावक, सायारो, सायारो यानी कि सागार, सागार यानी जो श्रावक है, घर में रहने वाला, जो घर में रहता है वो क्या है? सागार। और जो घर के त्यागी हैं वो अनागार। महाराज कैसे होते हैं? अनागार। और साधु के श्रावक क्या होते हैं? सागार। तो सायारो यानी सागार, जो गृहस्थ है वो क्या हो जाता है? धन्नो, धन्य हो जाता है। एकमात्र आहार दान से, कोई सोना चांदी नहीं देना, कोई हीरे मोती जवाहरात, कोई प्रॉपर्टी, कुछ नहीं देना, एकमात्र एक ग्रास आपने आहार दान का दे दिया, उससे क्या हो गया? श्रावक धन्य हो गया। अब देख लो, जो लोग मुनिराज हों और फिर भी आहार दान देने नहीं आते, प्रमाद में लगे रहते हैं, सोचो कितना बड़ा अवसर। आचार्य कुंद देव रेन सार की गाथा नंबर 15 में ये बात बोल रहे हैं कि आहार दान का इतना महत्व है कि जो साधु है, जो श्रावक है, वो कैसा हो जाता है? धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। कितना बड़ा महत्व बोला उन्होंने, एकमात्र आहार दान देने से। और दूसरी बात क्या करें? पत्ता पत्र विशेषम,
पात्र और अपात्र की विशेषता से। कौन पात्र हैं और कौन अपात्र हैं, ये जो विशेषता करनी कि ये आहार लेने लायक हैं या नहीं, ये बोले आपका विषय नहीं है। पत्तापत विशेषम, बोले ये जो नहीं, पत्तापत विशेषम का यह कहा कि कोई उत्तम पात्र है, कोई मध्यम पात्र है, कोई जघन्य पात्र है, तो ये जैसा जैसा उसका पात्र होगा उसकी विशेषता से संदंसने किम बिहारेण, आप तो अपना जो सम्यक दर्शन है वो मजबूत करके रखो और जैसा भी पात्र मिले उसको आहार दान दो। और आगे क्या कह रहे हैं कि भुक्ति मात्र प्रदान हेतु का परीक्षा तपस्विनाम ते संता संत संतो वा गृही दानेन शुद्ध्यति। क्या कह रहे हैं, बोले भुक्ति मात्र, भोजन ही तो दे रहे हो ना आप, तो भुक्ति मात्र प्रदान हेतु का परीक्षा तपस्वी नाम, क्या परीक्षा करोगे तपस्वियों की, सभी तपस्वी हैं, क्या परीक्षा कर रहे हो आप कि ये कम तपस्या कर रहे हैं, ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, ये अमुक संघ हैं, अमुक संघ हैं, ये बूढ़े हैं, ये वृद्ध हैं, ये रोगी हैं, ये प्रवचनकार हैं, बिना प्रवचनकार हैं, ये तपस्या आपका विषय नहीं है। आपका विषय क्या है, पिछी और कमंडल। भुक्ति मात्र प्रदान हेतु का तपस्या परीक्षा तपस्वी नाम, क्या परीक्षा करनी उसमें, किसी को आप लोन देते हो तो आप सोचते हो कि बंदा व्यक्ति वापस कर पाएगा नहीं पाएगा। 1 करोड़ का लोन देना हो आपको, बैंक कभी लोन देता है ना बड़ा लोन, तो बहुत सारी चीजें चेक करता है, उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है, उसकी प्रॉपर्टी चेक करता है, उसमें जमानत देखता है, उसमें किस किस की सिक्योरिटी है, कौन कौन व्यक्ति उसके सहयोगी हैं, सब कुछ देखता है। क्यों, बहुत बड़ी अमाउंट उसको देनी है लोन में, और एक छोटा सा कोई आ जाए गरीब व्यक्ति, भैया जी थोड़ा सा हमारे लिए सहयोग कर दो, हम 3 दिन बाद आपको 500 रुपये लौटा देंगे। तब आप सोचते हो ठीक है, नौकरी कर रहा है, 15,000 रुपये 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई दिक्कत आ गई 100 500 1000 रुपये में क्या सोचना, आप बिना कुछ उसके दे देते हो। अब साधु को क्या दे रहे हो आप, वहां तो उतना भी नहीं दे रहे, भुक्ति मात्र प्रदान, एकमात्र आहार दान दे रहे हो आप, और उसमें आप परीक्षा करने लग जाओ, उसमें भी आप परीक्षा करने लग जाओ। बोले भुक्ति मात्र प्रदान हेतु का परीक्षा तपस्वी नाम ते संत संतव संतोवा, बोले वो संत हैं या असंत हैं, साधु हैं या असाधु हैं, ये परीक्षा करना आपका काम नहीं है। आप तो अपना पिछी कमंडल देखो, आहार दान दो, भावलिंगी मान के आहार दान दो आपको। आप मत देखो कि भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी है, आपका क्या काम है, आहार दान देना आपका काम है। ते संता संतो संतोवा, वो संत हैं या असंत हैं, गृही दानेन शुद्ध्यति, आपके लिए शुद्धि हो जाएगी, आप धन्य हो जाएंगे। वो धन्य है या नहीं, आप धन्य हो जाएंगे। क्यों, आप तो उनको भावलिंगी ही मान रहे हो। आया समझ में, आप यदि भावलिंगी मान के उनको आहार दान दोगे तो आप धन्य हो जाओगे। गृही दानेन शुद्ध्यति, आपने तो अपना दान कर दिया, अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, आपकी शुद्धि हो जाएगी, आपके कर्म कट जाएंगे, आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। गृही दानेन शुद्ध्यति, ये संतो संतो वा, वो संत हो या असंत हो उसका कर्म वो जाने। वो भावलिंगी होंगे अपनी निर्जरा करेंगे, अगर भावलिंगी नहीं होंगे तो निर्जरा नहीं कर सकेंगे। आज द्रव्यलिंगी हैं, कल भावलिंगी होकर अपने कर्मों को काट लेंगे। लेकिन आपने यदि द्रव्यलिंगी को भी आहार दान दे दिया और भावलिंगी मान के आहार दान दे दिया तो आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो वास्तविकता में भावलिंगी को देने के लिए होगा। तो इसलिए तपस्या, प्रत्येक साधु क्या है, तपस्वी है। तो अपन बात किसकी कर रहे थे, शांतिनाथ भगवान की। अपन कहां पहुंच गए, शांतिनाथ भगवान का आज क्या है, तप कल्याणक, और क्या है, जन्म तप और मोक्ष कल्याणक। मोक्ष शास्त्र का तो आप अध्ययन कर ही रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम क्या है, मोक्ष शास्त्र। तो शांतिनाथ भगवान ने आज के दिन, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आज क्या कराया, लाडू भी चढ़ाया मोक्ष कल्याणक के दिन। क्यों लाडू क्यों चढ़ाते हैं, लाडू कैसा होता है, गोल होता है, उसका कोई भी अंत नहीं होता।
और कैसा होता है? मीठा होता है, मीठा होता है। तो मोक्ष में कैसा सुख है? सुख ही सुख है, और उस सुख का कोई अंत नहीं है। जैसे लड्डू खा के आपको क्या लगता है? सुख का अनुभव होता है, और लड्डू अंत से रहित है, कोई अंत नहीं है ना उसका, कहीं से भी उसको घुमा लो अंत तो मिलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से अनंत सुख को जिन्होंने प्राप्त किया, उसके निर्वाण के दिन हम क्या करते हैं? निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। तो शांतिनाथ भगवान की हम बात कर रहे थे, बानपुर के। बानपुर के जो शांतिनाथ भगवान हैं, आपको पता है उनकी क्या कहानी है? बानपुर के शांतिनाथ भगवान की क्या आतिश है उसका? किसी को नहीं पता? हाँ, पहले बढ़ती थी वो प्रतिमा। हाँ, वो प्रतिमा पहले जब थी कम अवगाहना की थी, और उसके बाद क्या हुआ? वो बढ़ती चली गई। प्रतिष्ठा होने के बाद भी वो प्रतिमा क्या? बढ़ती चली गई, और बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराना पड़ा, शिखर को ऊंचा करना पड़ा, और फिर उसके बाद वो और बढ़ने लग गई, अब और बढ़ने लग गई। अब लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय हो गया कि ऐसे तो अपन कितनी बार वो करेंगे, क्या कैसा करेंगे। फिर उसको मंत्रों आदि के द्वारा स्थापित किया गया, उसके लिए बढ़ने से रोका गया। तो ये अतिशय है किसका? बानपुर की प्रतिमा का। आपके 10 किलोमीटर पे बानपुर है, आपको पता ही नहीं है। तो वास्तविकता में कुछ तो प्रतिमा का अतिशय होता है, और बाकी दूसरी बात क्या है? पृथ्वी का एक जीव, जिसके अंदर जीव बाकी है, उसको क्या है? वो बढ़ता है। तो पत्थर भी जो है वो वृद्धि को प्राप्त होता है। तो यहाँ जो चर्चा चल रही थी स्थावर जीवों की, तो पृथ्वी का एक जो जीव होते हैं वो क्या है? स्थावर जीव हैं, उनके अंदर भी जीव है। और जल का एक, जल का एक क्या है? जीव है उसके अंदर। जल का एक के अंदर क्या है? जीव है। आप देखो, अपन लोग पानी को छान के पीते हैं, लेकिन मुनि महाराज मात्र छने हुए पानी से बात नहीं बनती उन्हें, उसको गर्म करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जल का एक जीव में त्रस जीव पाए जाते हैं, जो कि छानने के अलग हो जाते हैं। लेकिन जो जल का एक जीव स्वयं है, वो क्या है? स्थावर जीव है, एक इंद्रिय जीव। वो मात्र छानने से अलग नहीं होता। वो कब होता है? जब उसको प्रासुक कर लिया जाता है। प्रासुक करने पर, उसको गर्म करने पे ही वो जीव जो है समाप्त होता है। फिर वायु का एक जीव, वायु का एक क्या है? जीव है। आप देखो, पंखा चलाते हो आप, वायु का एक जीव की हिंसा होती है इसमें, वायु का एक जीव की हिंसा होती है। जो आप पंखा चला रहे हो, पंखा घूम रहा है, तो इससे क्या हो रही है? वायु का एक जीव की। और दूसरी बात यह है कि पंखा तो पंखा है, अब इसके अंदर तो कोई मच्छर मक्खी भी जा सकता है, 10 जीवों की भी हिंसा हो सकती है। लेकिन वायु का एक जीव तो नियम से हिंसा होती ही होती। तो जीव है ये भी। फिर अग्नि का एक, अग्नि का एक जीव। आप मोमबत्ती जलाओ, लैंप जलाओ, कुछ भी जलाओ, ये सब क्या है? अग्नि का एक जीव। अग्नि की शिखा है, जो लोहार होता है वो पीटता है अग्नि को, अग्नि में गर्म करके लोहे के साथ अग्नि भी पीटती। तो वो क्या है? अग्नि का एक जीव की हिंसा हो रही है। तो ये जीव है। और वनस्पति का एक तो आपको दिखते ही हैं आराम से, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब बड़े बड़े होते हैं, वो सब क्या है? वनस्पति का एक जीव है। तो ये सभी क्या है? जीव स्थावर जीव हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और वनस्पति का एक जीव। तो जो देशवती हो जाता है, तो देशवती के लिए त्रस जीवों की हिंसा को तो निषेध हो जाता है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का उसका निषेध नहीं होता। लेकिन छेडालाकार ने क्या कहा? वृथा था वर्णा संवारे। उसका नियम है कि त्रस का एक जीवों की तो हिंसा करेगा ही नहीं, अन्यथा उसके व्रत में दोष लग जाएगा। और साथ ही वृथा था वर्णा संवारे, अनावश्यक रूप से स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करता। और हम कहते हैं अव्रती भी यदि कोई है, प्रतिमाधारी नहीं भी है, तो भी उसको चाहे त्रस जीव हो चाहे स्थावर जीव हो, अनावश्यक हिंसा से तो उसको बचना ही बचना चाहिए। संकल्पी हिंसा को तो सभी को त्याग करना चाहिए।
जानबूझ के किसी जीव को बिना प्रयोजन के नहीं मारना चाहिए। तरस जीवों को भी नहीं मारना चाहिए और स्थावर जीवों के भी। इसलिए कहते हैं कि आप लोग घर में पंखा चलाते हो, ठीक है, गर्मी है, सहन नहीं हो रही, पंखा, कूलर, एसी, लेकिन जिस समय जा रहे हो उस समय तो क्या करना चाहिए? पंखा ध्यान रखना चाहिए, बंद करके भी जाना चाहिए। पानी की मोटर ऑन कर दी और बस ऊपर टंकी भी भर गई और पानी बहता जा रहा है। सोचो कितने, जहां जल का एक जीवों की हिंसा तो हो रही है और उस पानी में चींटियां भी आ सकती हैं, मकोड़े भी आ सकते हैं, उनकी भी साथ में हिंसा का किसको दोष लग रहा है? जिसने मोटर चलाई और बंद करनी भूल गया। अपन लोग गृहस्थ जरूर हैं, लेकिन कैसे हैं? सदगृहस्थ हैं। आप लोग कैसे गृहस्थ हो? सदगृहस्थ हो या असदगृहस्थ हो? कितने लोग सदगृहस्थ हैं? 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे हाथ उठा रहे डरते हुए। महेंद्र जी आप सदग्रस्त नहीं है क्या? सदग्रस्त है ना? फिर बनने का प्रयास कर रहे हैं, चलो इतनी भावना तो है। सदगृहस्थ महिला सदग्रस्त नहीं है आप लोग? कितनी सदग्रस्त है, कितनी असद है? सभी सदग्रस्त है ना? बूढ़ी अम्मा सदग्रस्त नहीं हो गया? तो सदग्रस्त का अर्थ है कि वो विवेक का प्रयोग करता है, विवेक का प्रयोग करता है। अपन कोई भी कार्य करें तो विवेक का ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से तो कम से कम हिंसा से बचें। अगर अपन ने मोटर चलाई है तो टंकी भर जाए तो उसे बंद भी करना है। अगर हमने अग्नि जलाई है, अपना काम हो गया तो उसको बंद भी करना है गैस को, और जितनी आवश्यकता है उतनी इस्तेमाल करें। नहाने के लिए अगर 1 बाल्टी पानी से काम चल जाता है तो ऐसा नहीं कि बस मोटर ऑन कर ली, टूटी ऑन कर ली और बस नहाते जा रहे हैं। गर्मी है, आनंद लेने। सदगृहस्थ जो है वो शुद्धि के लिए स्नान करता है। किस लिए स्नान करता है? शुद्धि के लिए। और जो कोई आनंद के लिए बस डालते जा रहे हैं पानी, खूब आनंद आ रहा है, तो पाप का बंद होता है। और हिंसा में आनंद मान रहा है, हिंसा आनंदी रौद्र ध्यान हो रहा है। बहुत सारे लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, क्या कर रहे हैं? हिंसा में आनंद मान रहे हैं। बहुत मजा आ गया, आज तो आनंद आ गया, खूब स्विमिंग करके आए हम तो, बहुत फ्रेश हो गए। अरे हिंसा हो रही है, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। कपड़े धोते हैं, पानी कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। सही तरीका है कि साबुन का जो पानी है उसको ऐसे निर्जंतुक स्थान पे डालना चाहिए कि जिन जीवों की हिंसा नहीं। और अपन नदियन बीच चीरे धुराए पढ़ते हैं ना अपन लोग आलोचना पाठ में, कोसन के जीव मराए। कहां कहां तक वो साबुन का पानी पहुंच गया? नाली में गया, नाली से फिर वो बड़े नाले में गया, बड़े नाले से फिर कई नदियों में, तालाब में और समुद्र तक पहुंच गया। कोसन के जीव मराए, किस कारण से? थोड़ी सी असावधानी के कारण। वही पानी अगर अपन एकत्रित करके और उसको कहीं ऐसे स्थान पे डाल देते वो वहीं का वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन कितना अपन ने अविवेक कर दिया कि नाली में बहा दिया उसको, पानी को। तो ये सब क्या है? अविवेक है। एक और त्रस्त जीवों की भी हिंसा हो रही है, स्थावर की तो हो ही रही है, त्रस्त जीवों के साथ में हिंसा का भागी बन रहा है। भोजन बनाते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना अपन भोजन बनाएं। पता लगा बहुत सारा बना लिया और उसके बाद फिर वो फिक रहा है, वेस्टेज हो रही है। वनस्पति का एक खाली बैठे हैं, घास उखाड़ रहे हैं बैठे बैठे, क्या हो रहा है? ये वनस्पति का एक जीव की हिंसा हो रही है। प्रमादचर्या जो श्रावक है उसके 12 व्रतों में क्या आता है? एक अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत तो उसमें जो 5 वेद हैं, दुष्टि और हिंसा दान, और इसके बाद फिर आपका पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्टि और प्रमादचर्या। प्रमादचर्या है ये सब। ये सब क्या है? बुरा सोचना भी प्रमाद है, बुरा सोचना भी प्रमादचर्या में आ जाता है।
यानी आपके अनर्थ दंड व्रत में आ जाता है। किसी का बुरा ना सोचो ना कहो, दुश्रुति बुरा सुनो भी नहीं, पापोपदेश बुरा कहो भी नहीं, ना बुरा कहो ना बुरा सोचो। बैठे हैं अपन, सामने वाले से कोई मतलब नहीं और सोचते जा रहे हैं, एक बार मिल जाए उसको अच्छे से देख लें अपन। अरे उसको तो पता भी नहीं कि आप क्या सोच रहे हो और आप बैठे बैठे बिना मतलब के पाप कमा रहे हो। एक व्यक्ति आया और उसको ट्रेन पकड़नी थी स्टेशन पे और वो जल्दी में निकल गया, आपको थोड़ा सा धक्का लग गया। अब वो तो जल्दी में था, ट्रेन पकड़ी और वो तो निकल गया और आप लगे उसको गालियां देने। उसको तो सुन भी नहीं रही हैं, उसको तो पता भी नहीं लग रहा, वो तो निकल गया और आप लगे हुए हो अपना पाप कमाने में। एक आ गया व्यक्ति कोई बढ़िया सा, खाली था, बस वो सुनाने बैठ गया इसकी उसकी, और अपन भी फुर्सत में बैठ के सुनने के लिए। एक और तो जो हमें धर्म ध्यान करना था उससे छूट गए और दूसरे की बुराई सुन के दुश्रुति नाम का हमने अनर्थ व्रत। तो ये सब क्या है? प्रमाचर्या, अनर्थ दंड व्रत। तो कभी भी अपन को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारे लिए पाप का उपार्जन। तो यहाँ जो बात चल रही थी स्थावर जीवों की, तो स्थावर जीव कौन से होते हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, ये सब क्या है? स्थावर जीव हैं। तो जहां तक हो सके हमें इन जीवों की रक्षा करनी चाहिए और साथ में त्रस्त जीवों की भी रक्षा होती है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य ने जहां जीव के भेद बताए वहां पर संसारी जीव के दो भेद बताए, एक संसारी यानी एक त्रस और एक स्थावर। तो स्थावर के आगे 5 भेद आचार्य ने बताए और उसी तरह से आगे त्रस जीवों के भी भेद आचार्य ने अगले सूत्र में बताए। इसके लिए भी अपन साथ में मिला हुआ टॉपिक है तो साथ ही लेके उसको पूरा कर लेते। तो 14 नंबर सूत्र में आचार्य त्रस जीव के भेद बता रहे हैं। द्विंद्रियाद्याः त्रसः, द्विंद्रियाद्या त्रसः। तो 2 इंद्रिय आदि, ये सभी तो स्थावर को क्या थे? एक इंद्री, जिनमें एकमात्र स्पर्शन इंद्री पाई जा रही थी, और बाकी जितने भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सब क्या हैं? त्रस हैं। जैसे केंचुआ, ये क्या है? 2 इंद्री जीव है, तो ये त्रस हो गया। चींटी 3 इंद्री जीव है, ये भी त्रस हो गई। चतुर इंद्री, मच्छर, मक्खी, उड़ने वाले जितने भी जीव हैं, ये सब क्या हैं? 4 इंद्री हैं। और 5 इंद्री में आपको सब पता ही है, मनुष्य है, बकरी है, गाय है, बैल है, ये सब क्या हैं? 5 इंद्री हैं। तो ये सभी क्या हैं? त्रस्त जीव हैं। तो जहां एक और हमें स्थावर जीवों की हिंसा से बचना चाहिए, वहां त्रस्त जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। नीचे चलो तो देख के चलो, कोई चींटी आपके पैर के नीचे ना आ जाए, ये क्या है? विवेक है। और तो क्या, नीचे देख के चलोगे तो 3 फायदे होते हैं नीचे देख के चलने के, कोई बता सकता है? महेंद्र जी, नीचे देख के 3 फायदे कौन कौन से हैं? क्या बोले? आवाजें नहीं आ रही आपकी। तो जीव हिंसा से बचते हैं, और क्या ना लगे? ठोकर नहीं लगती, और वो तो हो ही गया, और गंदगी से बच जाते हैं। नीचे देखत 3 गुण, खोई वस्तु मिल जाए। अब देखो, आपके 500 का नोट कहीं गिर गया हो और नीचे देख के चलोगे तो दिख जाएगा, सही है कि नहीं? किसी का हीरा मोती खो गया हो कहीं और वो कहीं नीचे देख के चल रहा हो, फटाफट मिल जाएगा। नीचे देखत 3 गुण, खोई वस्तु मिल जाए, ठोकर खाने से बचे, जीव दया पल जाए। सही है ना? तो नीचे देख के चलो, एक तो आपकी खोई हुई वस्तु मिल जाएगी, कोई गंदगी पे पैर आने से बच जाएगा, कांच पे पैर आने से बच जाएगा, कील आदि पड़ी हो उससे पैर आने से बच जाएगा, और जीव दया पल जाए। मुख्य क्या है अपना प्रयोजन? जीव दया पल जाएगी। कोई मच्छर, कोई चींटी आदि जो हैं, चींटा है, कोई भी और छोटे जीव हैं, उनके ऊपर पैर आने से उनकी रक्षा भी हो जाएगी। तो इसलिए 3 इंद्रिय जीव हैं। मच्छर हैं, आप क्या लगाते हो? कोई ओडोमास, कोई और ये वो, ठीक है, मच्छर परेशान करते हैं, आप कपूर डाल सकते हो, कोई ऐसी वस्तु लगा सकते हो, तेल आदि का प्रयोग कर सकते हो जिससे उसकी हिंसा ना हो। हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपके लिए सहन नहीं हो रहा, आप अपनी रक्षा कर लो,
रक्षा कर लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाले के लिए प्राणघात का कार्य तो नहीं करो। कम से कम आप ऐसी वस्तु लगा लो कि उसकी सुगंध से वो थोड़ा अलग हो जाए, लेकिन समाप्त नहीं करना चाहिए। और पंचेंद्रिय जीव तो महाहिंसा है। आप देखो कितने बूचड़ खाने और ये सब चल रहे हैं पंचेंद्रिय जीवों की। तो ये क्या हो रहा है वास्तविकता में, जो व्यक्ति एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय में भी जीव की कल्पना करता है, मानता है, तो निश्चित रूप से अपने समान उसको भी जीव तत्व मानता है, तो उस तरह की हिंसा से बच जाता है। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये तो बकरा आदि तो बने इसीलिए, इन्हीं की मान्यता ऐसी रहती है, जो इस तरह के मांसाहारी जीव होते हैं तो बोले खाने के लिए बने। तो जिसकी ऐसी मान्यता रहेगी वो निश्चित रूप से बहुत बड़े पाप का उपार्जन करेगा। हमें जो आचार्य ऋषि ने ये जो सूत्र दिए हैं, त्रस जीवों के विषय में बताया, स्थावर जीवों के विषय में बताया, तो ये सब जीव के भेद हैं। जैसे आप मनुष्य हैं, आप एक जीव हैं, ऐसे ये सभी भी क्या हैं, जीव हैं। इसलिए हमें त्रस और स्थावर दोनों को जीवों की संज्ञा में समझते हुए उनकी हिंसा आदि से बचना चाहिए। आप सभी त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से बचें और इस अहिंसा से बचते हुए एक दिन अहिंसा महाव्रत को धारण करें और अपना कल्याण कर सकें। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य घनाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज की जय।